Welcome everybody. This is our first class in our JEE Mains previous year's question series, and we are uh, making this video after our NEET previous year series for the same chapter of class 11th units and measurement. We have covered two videos for that series. In that series, we covered around 60 questions for this chapter for NEET previous year's question. And in this video, we are going to start for JEE Mains. And till now, when we are covering with theory, we are going to cover only up to 2020. And once we complete the theory for class 11th, then we will cover from 2020 to 2024 all previous year JEE main questions. So if you find our work good or meaningful to you or anyhow helpful to you, then you can like, share and subscribe to our channel. And you can also watch our previous videos on our YouTube channel. The name of channel is Point Basics. You can find it on YouTube. There are various playlists like class 11th, class 10th, class 9th. We have made theories videos and numerical videos and previous year question videos, so you can go and watch them. With this, if you want to support us financially, then you can scan this QR code and uh, give whatever amount you can. It helps us to buy new books and better computer hardware so we can keep on making such videos. So with this, let's start today's video and let's move to question number 1. So here is the first question. So the density of material in SI unit is 128 kilogram per meter cube. So density is mentioned as 128 kilogram meter cube, and it is 2019's question. So fairly recent question. So it will be a good exercise for you to, if you can do this question with me. For that, you can pause this video and then you can try to solve it yourself. So now this question is basically for unit conversion. So when we do unit conversion, we do it using dimensional analysis, and formula is N1 U1 is equal to N2 U2. So now U1 and U2 are here dimensions. So then dimensions of density are ML minus 3. And from here it is written that it is these are SI units. Let me choose a different color. These are SI units we are talking about. So what we can write that N1 U1 SI is equal to N2 U2 is a custom value, custom unit system which we are going to use. So let us write here it is 128. In SI, we will be using mass. For mass, we use kilogram or 1 kilogram, more accurate. And for length, we use meter. So 1 meter power minus 3. This is one side. Now on another side, we have N2, and length की value है 25 centimeters. So and mass for 50 grams. So 50 gram and length is 25 centimeter power minus 3. अब हमें जस्ट क्या करना है, हम इन दोनों टर्म्स को इधर लेके आएंगे और हमें N2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. सो 128 इंटू मास बाय मास रखेंगे एंड लेंथ बाय लेंथ रखेंगे. सो 1 kg बाय 50 ग्राम होल पावर 1, बिकॉज डायमेंशन यहाँ पे मास की 1 है, एंड 1 मीटर बाय 25 सेंटीमीटर पावर माइनस 3. फर्दर सोल्व करेंगे. 128 मल्टीप्लाई 1 किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे. सो 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम बाय 50 ग्राम्स पावर 1. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो 100 सेंटीमीटर डिवाइड 25 सेंटीमीटर पावर माइनस 3.
फर्दर सॉल्व करेंगे 128, जब हम यहाँ पे कट करेंगे ग्राम से ग्राम कैंसल, एंड ये इसको 20 पे कैंसिल करेगा, सो 20 मल्टीप्लाई, इट विल बी 100 by 25 is 4, 4 power minus 3, so 4 cube is 64, और a negative power है, so it will be 1 by 64. so जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे वी कैन कट इट, ये 2 पे जाएगा और आंसर होगा 40. सो जो हमारा n2 की वैल्यू आएगी इट विल बी 40. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. So, a metal sample carrying a current along x-axis with density Jx subjected to magnetic field Bz, the electric field Ey developed along y-axis directly proportional to Jx as well as Bz. The constant of proportionality हमें बताना है. So, इसको भी हम कैसे यूज कर सोल्व कर सकते हैं? Using dimensional analysis. So, ये गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड मीन्स ई वाई डेवलप हुई है अलोंग वाई एक्सिस. सो ई वाई जो वाई एक्सिस के अलोंग डेवलप हुई है प्रोपोर्शनल है जे एक्स के यानी कि करंट डेंसिटी के एज वेल मैग्नेटिक फील्ड के. सो अब हमें बताना है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. हम इसको पहले प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं सो दैट ई वाई इज इक्वल टू के टाइम्स सपोज के इज सम कांस्टेंट जे एक्स बी जेड. तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया. तो हमें इस के यूनिट्स बताने हैं. सो अगेन तो के की वैल्यू हो जाएगी ई वाई जे एक्स बी जेड. सो दिस इज द यूनिट्स ऑफ ई वाई जे एक्स. ये फॉर्मूला हो गया के लिए. नाउ बिकॉज हमें जस्ट यूनिट्स निकालने हैं तो हम यूनिट्स की फॉर्म में बात कर सकते हैं. एंड वी नो इलेक्ट्रिक बाय मैग्नेटिक फील्ड इज स्पीड ऑफ लाइट. सो वी कैन राइट इट सी बाय जे एक्स, और जो सी होती है सी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, एंड करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया. सो करंट बाय करंट, एक करंट के लिए हम ए यूज करते हैं बिकॉज यहाँ पे ए यूज किया गया है, और पर यूनिट एरिया तो मीन्स m माइनस 2. सो यूजिंग दिस वी कैन राइट इट एज, ये m2 ऊपर जाके m क्यूब हो जाएगा और s को हम नीचे ले आएंगे तो मीटर क्यूब बाय as. सो ऑप्शन बी इज द राइट वन. यहाँ पे जो हमने ट्रिक यूज की दैट e बाय b हमने उसको c यूज कर लिया बिकॉज एल्स हमें e और b इंडिविजुअल यूनिट्स निकालने पड़ते हैं तो वो लेंथी हो जाता है. तो हम यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक बाय मैग्नेटिक फील्ड इज का जो रेशियो होता है वो हमें स्पीड ऑफ लाइट देता है. सिमिलरली स्पीड ऑफ लाइट के लिए एक और रिलेशन होता है दैट इज म्यू नोड बाय एप्सिलॉन नोड इज इक्वल टू सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव इन करते हैं. नाउ इट इज मेंशन दैट क्वांटिटीज, एक ये क्वांटिटी है सो एक्स इज गिवन एज 1 बाय म्यू नोड एप्सिलॉन नोड. ये स्पीड ऑफ लाइट है जो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था. उसके बाद y अगेन e बाय b, ये भी स्पीड ऑफ लाइट के लिए रिलेशन होता है, एंड z इज इक्वल टू 1 बाय सी आर और आर सी. और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT देन यू मस्ट नो दैट जो आर सी होता है इट इज ए टाइम कांस्टेंट फॉर आर सी सर्किट. सो इसकी डायमेंशन टाइम की होती है. नाउ so C is capacitance, R is resistance, L is length, E is electric field, B is magnetic field, और epsilon node mu node permittivities है. So then we have to find out, हमें ये बताना है X, Y and Z have the same dimensions, only इनमें से किसकी dimensions same होंगी. So we know that X is again speed of light है C, y is again speed of light है, और जो 1 by t है इट इज 1 by RC होता है टाइम कांस्टेंट. सो ये फ्रीक्वेंसी है. सो x और y की डायमेंशन सेम है. सो ऑप्शन सी इसका राइट होगा. एंड ओके, सो इट इज नॉट 1 by RC, सॉरी,
it is L by RC, because here L is mentioned and it is not properly written, so it is L by RC. so यहाँ पे L by T is again length by time is again velocity. so अगर हम ऐसे देखें तो तीनों की डायमेंशन सेम हो जाएगी, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, एक्स वाई जेड हैव सेम डायमेंशंस। अगर ये 1 बाय आर सी होता तो ओनली एक्स और वाई की सेम डायमेंशन होती। आगे बढ़ते हैं। नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। सो ये हमने नीट की जो हमारी प्रीवियस सीरीज थी वहां पे भी किया था, दैट वी हैव रिलेशन थर्मल कंडक्टिविटी के लिए रिलेशन होता है हमारे पास, दैट हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम dq by dt is equal to ka dt by dx। यहाँ पे q is heat, t is time, k is thermal conductivity, and a is area, dt is temperature, t is temperature in Kelvin और x is distance। so यहाँ से अगर आप k का फॉर्मूला बनाते हो, for k we will be have dq by dt into dx by कैपिटल T। ये t स्मॉल t टेम्परेचर टाइम के लिए है और कैपिटल T टेम्परेचर के लिए, into 1 by a is equal to k। so now we know that heat is, जो हीट होती है उसकी डायमेंशंस एनर्जी के इक्वल होती है और एनर्जी होती है वर्क के इक्वल, और वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो ml स्क्वायर t माइनस 2, ये हो गया एनर्जी के लिए, dt इज टाइम, dx इज लेंथ, सो l, एंड ये कैपिटल T इज फॉर टेम्परेचर और केल्विन, सो इसके लिए हम k लिखेंगे, और एरिया इज अगेन 1 बाय l स्क्वायर। सो दिस l स्क्वायर गेट कैंसल्ड और हमारे पास आंसर बचता है m1, ये t ऊपर जाएगा और ये l है, सो ml t माइनस 3 k माइनस 1। सो ml t माइनस 3 k माइनस 1, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Now a quantity is given by IFV square, so IFV square by WL4, this is the quantity in terms of moment of inertia I, तो I moment of inertia है, F force है, V is velocity, W is work and L is length। तो ये बताना है कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो x के बराबर है, तो x यहाँ पे किसके इक्वल होगा, इनमें से किसके इक्वल होगा। सो हम डायमेंशनली सॉल्व करते हैं इसको। सो I is moment of inertia is mr square for any body, so m into L square for length, force mlt minus 2, and velocity, so lt minus 1 whole square, so lt L2 t minus 2, divide by work, so work is m L square t minus 2, and length 4, so L4, so we can get cancelled, L square से L4 कैंसिल हो जाएगा, t minus 2 से कैंसिल हो जाएगा, और मोस्टली हम सेम पावर्स को ही कैंसिल करते हैं डायमेंशंस में। हम जैसे ये L है और इसको कैंसिल नहीं करने वाले, सो बिकॉज उससे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है आपको, तो आप इक्वल पावर को कैंसिल कर दीजिए, बाद में बाकी चीज़ों को आप कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हम m से m को कैंसिल कर सकते हैं। सो ऊपर आपके पास बचता है ml t माइनस 2, और नीचे आपके पास बचता है L स्क्वायर था, तो ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, सो इट विल बी m L माइनस 1 t माइनस 2। एंड अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये जो डायमेंशंस हैं, एंड अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, m L t minus 2 by L square, so फोर्स बाय एरिया, ये सेम डायमेंशन होती है किसके लिए, प्रेशर के लिए, एंड प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी दोनों की सेम डायमेंशन होती है। सो इसका आंसर होगा एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पे प्रेशर भी आ सकता था, एनर्जी डेंसिटी भी आ सकती थी। आगे बढ़ते हैं। सो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डिफाइंड एज सोलर कांस्टेंट, डायमेंशन बतानी है।
सो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है। एनर्जी इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, अगेन वर्क के इक्वल, so ml square t minus 2, area is L square by T, so L square get cancelled, mt minus 3, so here is the answer, mt minus 3. Next question, if speed v, area a, force f are chosen as fundamental units, then dimensions of Young's modulus. So Young's modulus is Young's modulus को y से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, एंड स्ट्रेन डायमेंशनलेस होती है। इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया इनटू डेल्टा एल बाय एल। सो जो नीचे वाली टर्म है डायमेंशनलेस होती है, और फोर्स बाय एरिया इज प्रेशर, सो डायमेंशन आ जाती हैं एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, और इनको बोला गया है डिपेंड करता है स्पीड, एरिया एंड फोर्स पे। सो y इज इक्वल टू स्पीड पावर x, एरिया पावर y and force power z. So what we can do, हम dimensions put कर सकते हैं। Speed is lt minus 1 power x, area is L square power y, and force is mlt minus 2 power z। और हम यहाँ से यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन लिखते हैं ml minus 1 t minus 2। अब हम पावर्स को कलेक्ट करते हैं। सो फॉर m हमारे पास ओनली z है, लेंथ के लिए x प्लस 2y प्लस z, सो एंड फॉर टाइम, टाइम के लिए है माइनस एक्स माइनस 2z। इक्वेट करते हैं तो यहां से हमारे पास आ जाएगा z इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू माइनस 1, एंड माइनस एक्स माइनस 2z इक्वल टू माइनस 2। z ऑलरेडी 1 आ चुका है, सो माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। सो फ्रॉम दिस रिलेशन माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे पुट करते हैं 0 प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, और यहाँ से माइनस 2y इज माइनस 2, सॉरी प्लस 2y इज माइनस 2, एंड y इज इक्वल टू माइनस 1। सो हमारे पास वैल्यूज आ गई। सो यहाँ से वी कैन राइट यंग्स मॉडुलस इज v raised to power 0, a raised to power minus 1, and here we have last term force raised to power 1. So F1 a minus 1 V0, here is the answer, option D. Next question पे बढ़ते हैं। If momentum, area and time are taken to be fundamental, then dimensions of energy. तो सेम जैसे हमने previous question किया था, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं that energy is equal to momentum power x, area power y, and time power z. So momentum is mass into velocity, so ml t minus 1, x, area is L square, so y, and we have last term time, so time power c. Now energy की dimension work के equal होती है, and work is force into distance, so ml square t minus 2। पावर्स को कलेक्ट करते हैं, m पे हमें ओनली x मिलेगी, l पे यहाँ से x, यहाँ से 2y, और अगर टाइम पे देखा जाए तो माइनस एक्स ओनली। कंपेयर करते हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, सो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा 2y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू हाफ, एंड वी मेड अ मिस्टेक, टाइम की वैल्यू यहाँ पे c है। ओ हम c को ऐड करना ही भूल गए, सो माइनस एक्स प्लस सी, यहाँ से माइनस एक्स और यहाँ से c, सो माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 2, एंड यहाँ से x की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 1 प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 2, और c इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1,
minus 1. So we have energy is equal to PA T. X is 1, Y is half, and T is minus 1. So 1 half minus 1, here is the answer, option C. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Now it is mentioned, which of the following combination has dimensions of electrical resistance, epsilon node is permittivity of free space and vacuum. Now हमें यहां से resistance की dimensions बनानी है. So for that, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम resistance की dimensions को find out करते हैं, so that हम ये combinations को use करके उस dimension तक पहुंच सकें. So now जो resistance होता है from Ohm's law, we have Ohm's law V is equal to IR. So resistance is potential by current, and potential is, we know potential का formula होता है work done per unit charge. So this is formula for potential, and work done is force into distance, so ml square t minus 2, and charge is AT because हम current को fundamental quantity लेते हैं तो current का A होता है, and charge is current times current into time, so AT. तो इसको जब हम एडजस्ट करेंगे तो इट विल बी ml स्क्वायर t minus 3 a minus 1. सो यहाँ पे पुट करते हैं ml स्क्वायर t minus 3 a minus 1 बाय अगेन करंट इज a. सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ml स्क्वायर t minus 3 a minus 2. नाउ हमें ये पता है दैट 1 बाय म्यू नोड एप्सिलॉन नोड डायमेंशंस होती हैं स्पीड की और LT minus 1. इसके पास LT minus 1 की डायमेंशंस होती हैं, एंड जो म्यू नोड है, आपको म्यू नोड और एप्सिलॉन नोड दोनों की डायमेंशंस याद रखनी पड़ेंगी. जो म्यू नोड होता है उसकी डायमेंशन होती है ml t minus 2 a minus 2. So if we multiply like this, mu node into अंडर रूट ऑफ म्यू नोड एप्सिलॉन नोड, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा ml t minus 2 a minus 2 इंटू LT minus 1. सो यहाँ से m इंटू L स्क्वायर t minus 3 a minus 2. सो जो ये टर्म है ये रेजिस्टेंस के इक्वल डायमेंशन दे रही है, बट यहाँ पे ये ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं स्लाइटली. इस म्यू नोड को हम अंदर लेके आते हैं और वी विल गेट म्यू नोड स्क्वायर बाय म्यू नोड एप्सिलॉन नोड, और इसको आप एडजस्ट कर सकते हो स्लाइटली लाइक दिस, म्यू नोड बाय एप्सिलॉन नोड. सो दैट्स हाउ जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. So we have given formula x is equal to 5y z square, और x की डायमेंशंस हैं कैपेसिटेंस की, एंड जो हमारे पास यहाँ पे z है वो है मैग्नेटिक फील्ड. सो x इज कैपेसिटेंस और जो z है z इज मैग्नेटिक फील्ड. सो हमें y की डायमेंशंस बतानी है कि y क्या होगा. सो वी कैन राइट दैट मैग्नेटिक फील्ड, हम जस्ट फॉर्मूला को राइट कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम B यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू y टाइम्स C, बिकॉज नो 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 वेट ए मिनट, लेट अस रीराइट, इसको हम थोड़ा रब कर देते हैं पहले. So here x is capacitance is equal to 5y magnetic field.
ये हमारे पास रिलेशन है। तो इसको सोल्व करने के लिए व्हाट वी कैन डू दैट वी नो यहां से दैट y इज मैग्नेटिक फील्ड बाय कैपेसिटेंस। तो हम इन दोनों के अगर फॉर्मूलाज को डिवाइड कर दें एक दूसरे के साथ तो हमें y की डायमेंशंस मिल जाएंगी। सो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप कभी भी स्टार्ट करेंगे तो आप इस फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू BIL। ये आपके लिए स्लाइटली इजी फॉर्मूला रहता है। और एक दूसरा फॉर्मूला होता है दैट फोर्स इज इक्वल टू QV क्रॉस B और QVB। इन दो फॉर्मूलाज का हम यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। एंड जो कैपेसिटेंस होता है Q इज इक्वल टू CV होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास आएगा, कैपेसिटेंस विल बी Q/V, और जो V इज पोटेंशियल होता है वर्क बाय चार्ज, सो W/Q अगेन, सो Q ऊपर जाएगा, इट विल बी Q²/W। सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया Q²/W। एंड अभी आप देखिए यहाँ पे हमारे पास चार्ज है और वर्क है, तो हम यहाँ पे चार्ज वाला फॉर्मूला प्रेफर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, करंट वाला नहीं करेंगे। और यहाँ से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी फोर्स बाय Q इंटू वेलोसिटी। सो डिवाइड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज फोर्स बाय Q इंटू वेलोसिटी एंड कैपेसिटेंस इज Q²/वर्क, और वर्क ऊपर चला जाएगा। सो जस्ट अब डायमेंशंस राइट आउट करते हैं। फोर्स इज MLT-2, वर्क इज फोर्स इंटू डिस्टेंस, सो ये फोर्स अगेन इंटू डिस्टेंस। Here we have charge cube and charge is current into time, so A cube T cube, and velocity is LT-1। so with this हम L को कट कर सकते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे डायमेंशंस बचेंगी those will be we made a blunder here। Y is capacitance by magnetic field and magnetic field का यहाँ पे स्क्वायर है। so ये हमारा इतना एनालिसिस ठीक है, हमको इसको ठीक करना होगा। so let me redo this। so let me write it again। so it will be capacitance by magnetic field square। so capacitance is Q²/W and magnetic field square is F² multiply Q²V²। so that's how ये फाइनल फॉर्मूला बनेगा। so it will be Q4, so A4 into T4, velocity square L²T-2, work is ML²T-2, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और ये फोर्स स्क्वायर है, सो अगेन M² फोर्स L²T-4। फर्दर सोल्व करते हैं इसको। सो जो हमारे पास वी कैन कैंसल L² here, we can cancel T-2 here, एंड जब हम इसको फर्दर एडजस्ट करेंगे सो इट विल बी A4 T4 बाय M³ L²T-4। फिर से एडजस्ट करते हैं, ऊपर जाएगा तो M-3 होगा, L-2 होगा, और जो T है ये -4 है, ऊपर +4 है, ऊपर जाके फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, सो T8 हो जाएगा और A4 हो जाएगा। सो ऑप्शन A विल बी द आंसर वी आर लुकिंग फॉर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Now we have to find out dimensions of mu node by epsilon node by mu node। हमें इसकी dimensions को find out करना है। हमें just पहले फॉर्मूला से पता है that 1 by mu node epsilon node क्या होता है, LT-1 होता है। तो अगर हम इसकी डायमेंशन निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन नोड को
1 बाय म्यू नोड एप्सिलॉन नोड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नोड म्यू नोड। सो हमें इसके लिए जो एप्सिलॉन नोड है उसकी डायमेंशंस का पता होना जरूरी है। तो एप्सिलॉन नोड की डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं? या तो आप इसको याद रख सकते हैं या आप क्या कर सकते हो, या तो आप उसको याद रख सकते हैं या आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो एप्सिलॉन नोड आएगा, डायमेंशनली हम 4 पाई को इग्नोर करते हैं बिकॉज हमें ओनली डायमेंशंस चाहिए। सो इट विल बी 1 बाय एफ, चार्जेस की डायमेंशन सेम रहती है तो Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। Q इज 80, सो a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड फोर्स इज mlt माइनस 2 और डिस्टेंस इज l स्क्वायर। सो यहाँ से आ जाएगा m माइनस 1, दिस विल बी l माइनस 3 एंड T4a2। सो हमारे पास एप्सिलॉन नोड की आ गई वैल्यू और हमने जो फॉर्मूला बनाया था वो लाइक दिस, इसमें से एप्सिलॉन नोड हमारे पास है और ये हमें पता है वेलोसिटी होता है। सो m माइनस 1 l माइनस 3 T4a2 multiply velocity is lt minus 1. So m minus 1 l minus 2 t cube a square. So t cube a square, here is option D. और यहाँ पे देखें आप, थोड़ा इनको सफल करके लिखा हुआ है so that कंफ्यूज किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। So it is mentioned that L is inductance, R is resistance, C is capacitance and V is voltage। तो हमें डायमेंशन बतानी है L by RCV, L by RCV। So it is inductance by resistance into capacitance into वोल्टेज। तो हमारे पास ये रिलेशन है। सो अगर आप इस क्वेश्चन को नॉर्मली सोल्व करने जाएंगे तो आपके लिए क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। सो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे फॉर्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं। सो हमें ये पता है रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस हमें टाइम की डायमेंशन देता है। सो ये हमें शॉर्ट कर दिया कि ये टाइम है। नाउ गोइंग टू इंडक्टेंस एंड वोल्टेज। तो अगर आपने इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा हो, ईएमएफ इंड्यूस जो होता है, सो इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस एल डी आई बाय डी टी। यहाँ पे एल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमें सिर्फ इंडक्शंस की डायमेंशन देखनी है और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता आप म्यूचुअल इंडक्टेंस लो या सेल्फ इंडक्टेंस लो बिकॉज डायमेंशन सबकी सेम ही होगी। तो अगर आप इस फॉर्मूला को एडजस्ट करें और नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं बिकॉज हमें डायमेंशंस देखनी है। सो डी टी बाय डी आई विल बी एल बाय ई, और एल क्या है, इंडक्टेंस, और ई क्या है, पोटेंशियल और वोल्टेज। सो हमें इंडक्टेंस बाय वोल्टेज की वैल्यू भी मिल गई, दैट इज डी टी बाय आई, और डी टी की डायमेंशन होगी यानी टाइम और डी आई होगा ए। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, टी बाय ए, ये हमें इन दोनों से मिलता है, और कैपेसिटेंस इंटू रेजिस्टेंस हमें टाइम देता है। सो टी बाय टी कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा ए माइनस 1, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स गिवन है और उसके लिए रिलेशन गिवन है। सो फोर्स इज अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाय अल्फा के टी। सो जहां पे गिवन है x इज द डिस्टेंस, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t इज टेम्परेचर, अल्फा बीटा आर टू कांस्टेंट्स। तो बीटा की डायमेंशन हमें बतानी है कि बीटा की डायमेंशंस क्या हो सकती है। तो अगर हमें अल्फा बीटा की डायमेंशन निकालनी है, सो अगर हम फॉर्मूला देखें, ये वाला फॉर्मूला देखें, तो जो ये टर्म है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, बिकॉज अगर आपने देखा हो दैट e रेज टू पावर 1 e होता है और e की वैल्यू 2.71 होती है। e रेज टू पावर
टू भी सम नंबर्स आएगा। तो अगर आप एक्सपोनेंशियल में कुछ डालते हो तो हमें आपको नंबर ही मिलता है, यानी डायमेंशनलेस। तो ये पूरी की पूरी टर्म इज डायमेंशनलेस। सो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अल्फा के टी इज डायमेंशनलेस और एम एल जीरो टी जीरो। और आपको x की डायमेंशन पता है, x इज डिस्टेंस, सो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। अल्फा हम कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा एज इट इज। नाउ के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो के बी इंटू टी होता है वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, बोल्ट्जमैन इंटू टेम्परेचर और केल्विन। सो के बी टी इज इक्वल टू एनर्जी, तो यहां से जो के बी आ जाएगा दैट इज एनर्जी बाय टेम्परेचर। और आपने इस के को फिर से टी से मल्टीप्लाई किया हुआ है, दैट टी इज अगेन टेम्परेचर। सो आपने इसको फिर से टी से टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दिया। सो जो के बी टी होगा वो आपको डायमेंशन देगा एनर्जी की, एंड एनर्जी इज फोर्स इनटू, जो एनर्जी होता है वर्क के इक्वल होता है, और वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो। सो यहाँ से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और अल्फा ऊपर चला जाएगा, अल्फा विल बी, ये ऊपर जाएगा तो एम माइनस वन टी स्क्वायर। सो ये अल्फा की डायमेंशन आती है, बट हमें बीटा की कैलकुलेट करनी है। नाउ अगर आप अब इस फॉर्मूला के इस पार्ट को देखें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फोर्स आ रहा है, और ये तो पूरी की पूरी टर्म ही डायमेंशनलेस है, तो इसका पार्ट ही नहीं है। मीन्स जो फोर्स की डायमेंशन होगी वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगी, और फोर्स इज एम एल टी माइनस टू। अल्फा हम निकाल चुके हैं, एम माइनस वन टी स्क्वायर इंटू बीटा। सो यहाँ से आप बीटा कैलकुलेट कर पाओगे, ये इधर आके इसके डिवाइड में जाएगा और पावर्स ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएंगी। सो इट विल बी एम स्क्वायर एल एज इट इज, एंड ये जो टी था यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, सो टी माइनस फोर बीटा। सो एम एल स्क्वायर टी माइनस फोर, इट इज द आंसर, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। It is mentioned that speed v, acceleration a and force f are considered as fundamental units. तो हमें यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन बतानी है। तो ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आई थिंक सो लेट अस डू इट अगेन, अगर हम कर भी चुके हैं। जो यंग्स मॉडुलस होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन होती है डेल्टा एल बाय एल। तो इसकी डायमेंशंस आ जाएंगी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सो Young's modulus is proportional to speed power x, acceleration power y, and force power z. So Young's modulus की dimensions हैं ml minus one t minus two equals to speed lt minus one x, acceleration is lt minus two y, and force is mlt minus two power z. So जब हम अब पावर को कलेक्ट करते हैं, सो एम वी हैव, एम की पावर है ओनली जेड। अगर हम एल देखते हैं तो एल में हमारे पास एक्स प्लस वाई है और यहाँ से प्लस जेड है। और अगर टी में देखते हैं तो टी में माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड, माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड। और यहाँ पे हम पावर्स को राइट आउट कर देते हैं। जब कंपेयर करेंगे तो z इक्वल टू वन आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस वन। जेड को आप वन पुट कर दोगे तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस टू। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, एंड जो लास्ट टर्म है माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड इक्वल्स टू माइनस टू। तो फिर से आप z को वन पुट करोगे, ये माइनस टू उधर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा और ये जीरो बन जाएगा। सो माइनस एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। और जब आप इसको देखते हो कि ये जीरो बन रहा है,
तो यहाँ से आप निकाल सकते हो दैट माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y. फर्दर x विल बी -2y. यहाँ पे हम यूज करते हैं इसको -2y प्लस y इज इक्वल टू -2 एंड यहाँ से -y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 2. y 2 आ जाएगा तो अगर x हो जाएगा -4. तो जो रिलेशन बन जाएगा v पावर -4 a पावर 2 एंड f पावर 1. सो -4 2 1 ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो एक क्वांटिटी है दैट इज f इज इक्वल टू hc5 बाय g वेयर c स्पीड ऑफ कांस्टेंट और हमें ये फाइनल वो बतानी है कि इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, कि ये जो हमने निकाला है इसकी फाइनल डायमेंशंस क्या होंगी. तो इसके लिए हमें h की डायमेंशन पता होना चाहिए. h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन किसके इक्वल होती है, एंगुलर मोमेंटम के. सो विल बी mvr मास वेलोसिटी डिस्टेंस ml स्क्वायर t माइनस 1 और c की हमें पता ही है और g के निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का m1 m2 by r square. So g will be force r square by m square. Force ये हो गया ये l square और this is m square. So m minus 1 l cube t minus 2. So values put करते हैं. h is ml square t minus 1. Velocity 5, so l5 t minus 5 divide m minus 1 l cube t minus 2. सो कैलकुलेशन फर्दर लेके जाते हैं. ये -1 है ऊपर जाके +2 हो जाएगा. सो m स्क्वायर. अगर हम यहाँ पे l की पावर को देखते हैं तो 2 + 5 7 और ये ऊपर जाके -3 तो 7 - 3 4. सो l4. और अगर t के लिए देखते हैं तो ये -6 + 2 -6 + 2 जो होगा -4. और जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे अंडर रूट से बाहर निकालते तो आंसर आएगा m l स्क्वायर t माइनस 2 और ये किसकी है, ये वर्क की और एनर्जी की डायमेंशंस है. सो आंसर हो जाएगा एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्रेशन ऑफ टाइम. हमें टाइम की एक्सप्रेशन बताना है इनके टर्म्स में g h एंड c के टर्म्स में. और डायमेंशन हम सबकी निकाल ही चुके हैं, जो हम इसको प्रीवियस पार्ट से कॉपी कर लेते हैं बिकॉज सो दैट हमें बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े. सो दीज आर द डायमेंशंस. ये h की है और ये g की है. सो हम वी कैन राइट कि जो टाइम होगा वो डिपेंड करेगा g पावर x, h पावर y एंड c पावर z. सो जो g की डायमेंशन है m-1 l क्यूब t माइनस 2 पावर x, h is ml स्क्वायर t माइनस 1 पावर y एंड c is lt माइनस 1 पावर z. और यहाँ पे ओनली t है सो इट विल बी m0 l0 t1. पावर्स को कलेक्ट करते हैं सो इट विल बी -x यहाँ से y, l के लिए 3x 2y and z, and for time we have -2x -y -z. so कंपेयर करते हैं. m की पावर 0 है सो -x + y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -y और x इज इक्वल टू y. 3x + 2y + z इक्वल टू अगेन 0. l की पावर भी 0 है. सो
यहाँ पे y को x की टर्म में ले आते हैं, सो 3x प्लस 2x प्लस z यानी कि 5x प्लस z इक्वल टू 0। एंड जो लास्ट है दिस वन इज इक्वल टू 1, और फिर से y को हम किसकी टर्म में लिखते हैं, z की टर्म में लिखते हैं, सो इट विल बी माइनस 3x माइनस z इक्वल टू 1, और अगर यहाँ से हम राइट करें z विल बी माइनस 5x, so minus 3x minus of minus 5x is equal to 1, so minus 3x plus 5x is equal to 1, or 2x is equal to 1 and x is equal to half, z is equal to minus 5 by 2 and y is equal to half. So relation will be g power half h power minus 5 by 2 and c power, that is z, minus 5 by 2. Sorry, इधर हाफ आएगा प्लस हाफ, x एंड y आर हाफ एंड इट इज माइनस 5 by 2, तो इसको आप लिख सकते हो लाइक दिस इन अंडर रूट gh by c5, so gh by c5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो dimensions of stopping potential in photoelectric effect in units of Planck's constant, speed of light, gravitational constant g and ampere a। सो हमें यहाँ पे सबका यूज करना है, तो अगेन हम उन्हीं का यूज कर लेते हैं बिकॉज ये जी की और प्लैंक्स कांस्टेंट की हम निकाल चुके हैं डायमेंशंस, ये रही हमारे पास। एंड नाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो डायमेंशन होंगी वो नॉर्मली हमारे पास पोटेंशियल के इक्वल होती है, और पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और जब आप ये डायमेंशंस फाइंड आउट करोगे, हम मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं, सो दीज विल बी ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1, g की और h की हम निकाल चुके हैं, c की हमें पता है lt माइनस 1 और एम्पियर इज अगेन a। सो लेट अस राइट कि जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू h पावर x c पावर y g पावर z। और इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो a है उसको भी, क्योंकि एम्पियर पे भी डिपेंड करता है, तो इसको हमने सपोज कोई वैल्यू दे दी d। सो लेट अस राइट डायमेंशंस। सो पोटेंशियल के लिए आ जाएगी ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1 इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, ये डायमेंशन है, ml स्क्वायर t माइनस 1 पावर x, velocity lt minus 1 power y, gravitational constant m minus 1 l cube t minus 2 z, और जो a है वो एज इट इज रहेगा पावर d। पावर्स को कलेक्ट कर लेते हैं, m पावर x एंड माइनस z, l पावर 2x प्लस y प्लस 3z, and time for minus x minus y minus 2z, so this is for time and a power t। तो अगर हम कंपेयर करें तो d तो हमारे पास डायरेक्टली -1 आ जाएगा, सो d इज -1, और आप इसको अभी ऑप्शन में चेक भी कर सकते हैं कि सभी ऑप्शन में d इज -1 है, तो हम अभी शॉर्टिंग नहीं कर सकते ऑप्शंस की। फर्दर आगे बढ़ते हैं, x माइनस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 2 एंड माइनस x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू -3। सो यहाँ पे कोई इजी ऑप्शन आउट नहीं है, सो बट वी कैन राइट x इज इक्वल टू 1 प्लस जेड। सो इस इक्वेशन में पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 प्लस जेड, और यहाँ से हमारे पास आएगा 2 प्लस 2z
प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 2, और वी कैन राइट आउट, ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, y प्लस 5z इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू माइनस 5z। सो अगेन यहाँ पे राइट आउट करते हैं, -1 माइनस जेड, एक्स की वैल्यू हमने पुट की, y की वैल्यू -5z है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, -2z अगेन है इक्वल टू -3, सो इट विल बी -3z प्लस 5z यानी कि 2z, और ये -1 वहां पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सो 2z इज इक्वल टू -3 प्लस 1, और यहाँ से z आएगा -2/2 -1, y आ जाएगा +5 and x will be I think 0। सो अगर हम देखते हैं कि x 0 है मींस h पावर 0, तो यहाँ पे h की कोई भी पावर 0 नहीं है। सो दिस क्वेश्चन में जो सभी ऑप्शंस हैं ऑल आर इनकरेक्ट, और जो राइट आंसर होगा इट विल बी h पावर 0, c पावर y मींस c पावर 5, g power -1 and a power -1, this will be the right answer। and अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है then please scan this QR code and donate whatever possible। next question, so the dimensions of b square by 2 mu node where b is magnetic field and mu node is magnetic permeability। so if you are a means if you are 12th class student, so आपको पता होगा हाफ एप्सिलॉन नोड ई स्क्वायर क्या होता है, प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी। सिमिलरली बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नोड भी प्रेशर की ही डायमेंशन देता है, और प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, दिस इज फोर्स, दिस इज एरिया, सो ml - 1 t - 2, सो ml 1 - 1 t - 2 बोथ आर प्रेशर, सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। So which of the following gives the Planck's length? एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर्म किया गया लाइक दिस, और यहां पे बोला गया करेक्टली गिव्स प्लैंक्स लेंथ। तो जो लेंथ है दैट इज, लेंथ की डायमेंशन L होती है, और हमें G और GHC की हेल्प से लेंथ के लिए फॉर्मूला बनाना है। तो अगेन हम सेम डायमेंशंस को पेस्ट कर लेते हैं बिकॉज हमें इन्हीं का यूज करना पड़ेगा। जो हमारा आंसर है उसकी डायमेंशंस L की है, तो हम ये ले लेते हैं L1 m0 t0 is equal to g power x, h power y and c power z। So g is m-1 L cube t - 2 power x, h is ml square t - 1 y lt - 1 z। so ये हमारे पास इंडिविजुअल डायमेंशंस हो गई। नाउ व्हाट वी डू, हम फिर से पावर्स को सेपरेट करेंगे, m - x plus y, L is 3x plus 2y plus z and t is -2x minus y minus z, और यहाँ पे m0 L1 t0। तो जब हम कंपेयर करेंगे पावर्स को, -x plus y is equal to 0 और x is equal to y, और यहाँ से 3x plus 2y plus z equal to 1 और x is equal to y है, तो हम y को रिप्लेस कर देते हैं x से, सो 3x plus 2x यानी कि 5x plus z is equal to 1 एंड इन दिस रिलेशन ये भी 0 के इक्वल होगा, और फिर से y को x से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -3x minus z equal to 0, और यहाँ से हम राइट आउट कर सकते हैं दैट -z is equal to 3x और z is equal to -3x।
सो 5x, z की वैल्यू यहाँ से आएगी -3x इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू हाफ, सो y इज इक्वल टू हाफ एंड z इक्वल टू -3/2. सो g पावर x यानी z पावर हाफ एंड h पावर y यानी कि हाफ और c पावर z यानी कि -3/2. So formula will be gh by c cube under root and option B will be the right one. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा. सो टाइम, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम को फंडामेंटल क्वांटिटी चूज किया गया है मास, लेंथ और टाइम की जगह पे. तो मास की डायमेंशन बतानी है. सो अगेन हमें यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन चाहिएगी, तो हम सेम यूज कर लेते हैं जो हमने अब जस्ट कैलकुलेट की हुई है ऑलरेडी. सो व्हाट वी राइट कि जो मास है वो टाइम की पावर x पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी यानी कि c की पावर y पे और h की पावर z पे डिपेंड करता है. सो टाइम के लिए डायमेंशन t ही रहेगी, वेलोसिटी के लिए lt-1 एंड जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसके लिए हम यहां से कॉपी कर लेंगे ml² t-1 पावर z. सो दिस इज m. पावर्स को कलेक्ट करते हैं तो m पावर z आएगा, l पावर y प्लस 2z आएगा, यहाँ से y और यहाँ से 2z, और t पावर x माइनस y, यहाँ से x, यहाँ से माइनस y और यहाँ से माइनस z आएगा. सो m1 l0 t0. जब आप कंपेयर करोगे तो z विल बी 1, y plus 2z equal to 0, y is minus 2z or minus 2, and x minus y minus z is equal to 0. So x minus 2 यानी कि plus 2 and z minus 1 0. So x is equal to -1. So टाइम की पावर -1 हो जाएगा एंड वेलोसिटी की पावर -2 हो जाएगा. सो बोथ दिस ऑप्शन एंड h की पावर 1 होगा. सो दिस ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर. सो विद दिस हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन, अप टू 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं. इसमें हमारे पास अराउंड 70 to 80 क्वेश्चन हैं जो हम अपकमिंग वीडियोस में कंप्लीट करेंगे. एंड एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये सीरीज पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब भी हमारे लिए मोटिवेशन का वर्क करता है. और अगर आपके कुछ सजेशन हो तो आप वो सजेशन कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उनको पढ़ेंगे और जो भी सजेशन होंगे अगर हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे. एंड इफ़ यू कैन donate something, then you can scan this QR code and give whatever amount you can, and like, share and subscribe. With this, let's meet in next video. Thanks for watching.